Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम एक और प्रॉब्लम लेजर के चैप्टर का करेंगे. अगेन ये चैप्टर और ये इंडेक्स हो सकता है कि सर मैं तो ये स्टैंडर्ड में नहीं हूँ. दैट डजेंट मैटर. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ऐसा कोर्स कर रहे हो जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको सिखाया जा रहा है, ओके, वेरी सिंपली पुट, अगर आप फाउंडेशन कोर्स दैट इज ऑफ द CA एग्जामिनेशन, द फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्स कर रहे हो, यू स्टिल हैव टू बी नोइंग ledger accounts. I have in the past maybe around 4 lectures introduced the concept of ledger. I have told you क्या होता है, कैसे करना है, और आज एक और प्रॉब्लम करते हैं. ये चैप्टर ख़त्म होने के लिए मुझे लगता है और 4 या 5 लेक्चर लग जाएंगे. तो कोई भी चैप्टर अगर आप देखते हो, प्लीज़ रियलाइज़ दैट वो चैप्टर इत्तू सा नहीं, हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं. एंड वेरी नीटली पुट, ओके, मेरे सहभागी जो चैनल पे है वो यूट्यूब पे ऊपर अच्छा प्लेलिस्ट बनाकर उसको बराबर से अरेंज करते हैं. सो यू नो एग्जैक्टली कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बट उसी तरीके से जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है. टुडे जर्नल हमने सीखा है, लेजर कुछ हद तक डेफिनेटली आपने सीख लिया है. तो आज इम्पोर्टेंट या अलग क्या है? ट्रायल बैलेंस. ओके, मेनी ऑफ यू, ये क्या है? वेल, डोंट वरी, at the end of the solution maybe 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा ये ट्रायल बैलेंस जो भी है वो समझा के सॉल्व करने में. एट दिस वेरी मोमेंट आपको चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है. हाँ, इतना ज़रूर समझना है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए आपका ध्यान ये वाली स्क्रीन पर, आई होप, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन तो आती ही है, वेदर वो आपके इंस्टाग्राम का हो, वेदर वो आपके व्हाट्सएप का हो, ओके, या डिपेंडिंग सम यू टीनेजर्स नो यूज़ सो मैनी मल्टीपल ऐप्स के, मतलब उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास भी नहीं है. बट आई होप योर अटेंशन टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट स्क्रीन पर बना रहेगा. सो क्या कहता है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स. इट्स ऑब्वियसली अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. पहला काम जर्नलाइज, सेकेंड काम लेजर अकाउंट्स. नेसेसरी मतलब कितने, मुझको नहीं पता, कभी होते हैं 8, कभी 10, कभी 12, ओके. कुछ टीचर्स, कुछ भले टीचर्स स्पेसिफाई करते हैं प्रिपेयर 3, 4, तो यू हैव टू ओनली प्रिपेयर 3, 4. ये नेसेसरी बोलेंगे ना तो फिर रामायण बहुत लंबी हो जाती है. पहला जर्नल, दूसरा लेजर, फिर लेजर के अंदर रीड अहेड, बैलेंस दी अकाउंट्स.
सो कास्टिंग इज व्हाट इज बैलेंसिंग, वो तीसरा काम। एंड आज का चौथा काम, एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st of March 2019। तो देयर आर 4 जॉब्स, 1 2 3 4, और वो बीच से या एंड से नहीं शुरू हो सकता। यू हैव टू स्टार्ट विथ जर्नल एंट्रीज। सो एट दिस वेरी मोमेंट क्वेश्चन का जो जर्नल है वो बना लेते हैं, बाद में लेजर की भी चिंता कर लेंगे। स्पीड अगर सिंपल है तो मेरा नॉर्मली थोड़ा फास्ट ही होगा, क्योंकि जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट नया या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है देन अकॉर्डिंगली मैं अपना टाइम मतलब बड़े आराम से, बड़े विस्तार में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। राइट नाउ हमें इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स लिखना है 2019 मार्च 1। विराट मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक ऑफ इंडिया में उसने खाता स्टार्ट किया, खुद के लिए नहीं बिजनेस के लिए, 7,000, और फर्नीचर सोफा डेस्क चेयर, ये 3 चीज़ों के साथ। नाउ दीज 3 आर एसेट्स और ये बिजनेस में आ रही है, तो हमको करना है डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक। एक्चुअली द रूल इज डेबिट द रिसीवर, बट ऑल 3 आर डेबिट एंड ऑल 3 आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विराट, तो इसके लिए क्रेडिट कैपिटल टोटल। एंड देन अकॉर्डिंगली वन वेरी स्वीट साउंडिंग नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ अबाव मेंशन्ड एसेट्स, क्योंकि कभी कभी हमने ऐसे प्रॉब्लम किए जहाँ पे लिस्ट इतनी लंबी रहती है, बराबर, मतलब 8 एसेट है 4 लाइबिलिटी है, तो आप सब नाम मत लिखिए, बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा। ओके, तो चिट चैट थोड़ा मैं कम रखता हूँ मेरी तरफ से। थर्ड, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रोहित लेस 10% रेट डिस्काउंट, 10% माइनस कर लेना, या तो लिखकर या तो दिमाग में। आपको आएगा 1000 माइनस करोगे तो 9000। परचेस का जर्नल एंट्री क्या है? परचेसेस एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रोहित इज द गिवर टू रोहित एंड अकॉर्डिंगली द एसोसिएटेड नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रोहित एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी सिंपल है, कोई बखेड़ा नहीं है। 7, सोल्ड गुड्स टू सुनील, 5000, यहाँ पे भी 5% डिस्काउंट, तो 250 इज द डिस्काउंट, 4750 इज द नेट अमाउंट। नेट अमाउंट पे हमेशा रिकॉर्डिंग होती है। आप सुनील को गुड्स बेच रहे हो तो सुनील इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। एंड सेल्स कोई भी छोटा दुकान या मोटा दुकान या बड़े दुकान का इनकम होता है। आपने मतलब जितना मैं जानता हूँ भारत देश में जो लास्ट एक प्राइम टाइम पे सीरियल है, वो है शार्क टैंक इंडिया, मैनी ऑफ अस आर सीइंग इट। उसके अंदर एक सवाल, एंड मतलब अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो ना तो मतलब मैं तो खुद रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी का सब नागिन और सास बहू वाले सीरियल्स अलग, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई वहाँ से आपको नहीं मिलेगी, बराबर। हाँ, बट शार्क टैंक इंडिया से डेफिनेटली, मे बी ड्रामा होगा, मे बी थोड़ी कॉमेडी रहेगी, बट कॉमर्स की पढ़ाई आपको डेफिनेटली समझने मिलेगी। एंड वन ऑफ द रीजंस या वन ऑफ द क्वेश्चंस जो शार्क्स उन एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं, भैया कमाते कितने हो, आपका बिजनेस कमाता कितना है, आपकी बिजनेस की बिक्री कितनी है, सेल्स कितनी है, क्योंकि उससे इनकम पता चलता है। तो सेल्स कोई भी बिजनेस का मतलब नया या पुराने बिजनेस का इनकम होता है। सो 7 तारीख की तो कहानी हो गई। अभी उसके साथ जुड़ा हुआ मैंने और थोड़ा कहानी आपको सुना दिया। 10, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, बिकॉज आप अगर गूगल पे या ऑनलाइन कोई भी सुविधा यूज़ करना चाहते हो तो पहले तो बैंक में पैसे होने चाहिए ना। सो बैंक अकाउंट डेबिट, आप बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे तो चलेगा, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लिखने की कोई कंपल्शन आपको नहीं है। सो ये तो हो गया हमारा 1st, 3rd, 7th एंड 10th। मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूँगा। परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट। फर्नीचर लिया, डोंट से परचेज, क्योंकि परचेज का मतलब गुड्स होता है। फर्नीचर हम हर दिन नहीं खरीदते, मोटर कार हम हर दिन नहीं खरीदते, मशीनरी हम हर दिन नहीं खरीदते, तो हमको यहाँ पे करना है फर्नीचर डेबिट। सो इन माय नेक्स्ट जर्नल एंट्री ऑन द नेक्स्ट डेट 12th मार्च, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा। क्यों? पैसे मैंने नहीं दिए, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा ऑन
क्रेडिट मतलब आपने उधारी पर खरीदा है, जो चलता है, हर बिजनेस में चलता है, हर दुकान को अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए या कभी कभी कस्टमर्स की थोड़ी हेल्प करने के लिए उधारी देनी पड़ती है। पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग, आई रिपीट ना, थोड़े टाइम पहले हमने बैंक में पैसे जमा किए, अगर नहीं जमा करेंगे तो फिर हम नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेटीएम, गूगल पे कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारे जो ऐप्स है वो सारे आपके बैंक के कनेक्शन के साथ ही चलते हैं। ओके, तो 15 तारीख को आपने वर्मा को पेमेंट किया, आपने नेट बैंकिंग से किया, तो पैसे तो बैंक से ही गए। ओके, वर्मा अकाउंट डेबिट 8,000 to bank or Bank of India in this particular solution. Next one comes 17 paid printing expenses। अब कोई भी एक्सपेंस आप दो वो तो खर्चा ही होता है ना, वो होता है डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर आप बैंक से भरो तो बैंक, अगर आप कैश से भरो तो कैश लिखना पड़ेगा। ओके, हर एंटरप्राइज में, हर दुकान में प्लीज़ नोट, बड़े खर्चे भी रहते हैं और छोटे भी। बड़े खर्चे चलो चेक से या बैंक से कर सकते हैं, बट छोटे खर्चों के लिए उतना टाइम नहीं होता, तो वो नॉर्मली कैश में ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सेज रिसीव्ड, पैसे मिले, कमीशन 200, ये 20th को हुआ, तो अगर पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली तो खर्चा ही होते रहता है। कमीशन आपका इनकम है, इसके लिए क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स आफ्टर 20th। नेक्स्ट इन लाइन इज विड्रू, पैसे निकाले, कैश फ्रॉम बैंक बाय एटीएम, मतलब बैंक से पैसे निकाले या बैंक के एटीएम से निकाले, मतलब बेसिकली एटीएम भी तो बैंक से कनेक्टेड है, और वो बिजनेस में आया, कैश बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, सम स्टूडेंट्स आर लाइक सर आप कुछ ड्राइंग फ्रॉइंग ऐसे करके कुछ बोलते हो, प्लीज नोट, अगर वो घर के लिए, घर वालों के लिए पैसे निकाले हैं तो ड्राइंग होता है, ये बिजनेस के लिए पैसे निकाले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक इज द गिवर। ओके, मतलब एटीएम मशीन मतलब बैंक इज द गिवर। नेक्स्ट 28 पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे आपको थोड़ा हिस्ट्री वर्मा का समझाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ओके, मतलब in this particular page, do you see top to bottom the name of Verma? No. Do you notice the name of Verma? Yes. So 12th March को, ओके, थोड़ा मैं पेज को मेरे कंट्रोल में लेकर आता हूं। वर्मा क्रेडिट है 20,000, मतलब क्या है? ही इज अ क्रेडिटर, मुझे उसको 20,000 देने हैं। ओके, बट देन 15th मार्च को 8,000 डेबिट। व्हाट डज दैट मीन? डेबिट द रिसीवर, 20,000 देने थे, 8,000 दे दिया। दैट इज व्हाट हैपेंस। तो लेन देन तो चलते रहता है। हाँ, तो अभी कितने देने हैं? 15 मार्च को अभी कितने देने हैं? यार पहले 20 देने थे पर मैंने 8 तो दे दिया, तो अभी 12,000 देने हैं। ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, ये अलग अलग वर्मा नहीं है, ये सेम वर्मा है। आपको अभी कोई पूछे ये वर्मा को कितने पैसे देने? 12,000 बॉस, 20,000 नहीं। अच्छा, तो अगर आपको 12,000 देना है, एंड इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन विच यू शुड, इट सेज पेड टू वर्मा। क्या पे करना था? 12,000। पेड टू वर्मा 11,500। यार 12,000 देना था, 11,500 दिया, 500 रुपया कम, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये क्या है? देखो भाई, एक्चुअली क्या है ना, होता है हर बिजनेस में, अगर दुकानदार को या रिक्शा वाले को, रिक्शा वाला नहीं, ओके, दुकानदार को नॉर्मली हमको देना है, लेट्स से 62 रुपीज, 61 रुपीज, हम 60 रुपीज देते हैं। एंड अगर हम 1-2 रुपया ना दे, अगर नॉर्मली दुकानदार बड़ा ड्रामा नहीं क्रिएट करता, बोलता है ओके चलता है यार, 1-2 रुपए के लिए हमको कस्टमर से क्या झगड़ा करना है, 1-2 रुपए के लिए। ओके, मैं 1,000-2,000 के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, 1-2 रुपए के लिए। राइट नाउ आपको समझना है, आपने पे किया वर्मा को, बराबर, पे करना था 12,000। कहां से आया 12,000? आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ता है, उसका याद करना पड़ता है। 20,000 माइनस 8,000, 12,000। बट मैंने 11,500 में क्लियर किया, मतलब 500 रुपया अपना डिस्काउंट, अपने जेब में बच गया 500 रुपया, तो वो हमारा डिस्काउंट होता है, वो हमारा फायदा है।
वर्मा डेबिट 12,000. एवरीबडी और सम ऑफ यू विल आस्क मी, अरे 12,000 कहाँ से आया? 20 माइनस 8. 20 8 कहाँ पे है? प्रीवियस डेट्स पे दिया गया है, आपको वो देखना है. ओके, टू कैश 11,500 क्योंकि दैट इज व्हाट आई हैव पेड. सो 500, ऐसा नहीं कि कल दूंगा, फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट खत्म करो, डिस्काउंट में लिख के खत्म करो. सो वेन एवर यू सी द वर्ड फुल सेटलमेंट, एवरीबडी ऑफ यू, ओके, ऑल यू स्टूडेंट, समझ जाओ. कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है. इशारा किसके लिए है? डिस्काउंट के लिए है जी. एज सिंपल एज दैट. ओके, 28 मार्च हो गया एंड आई होप आपको मतलब वो समझ भी आ गया. उसके बाद है 30th लास्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है तो खर्चा कर लो भाई. ओके, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और वो कैश में भरा क्योंकि ऐसा बोला नहीं है कि बैंक से भरा. टू कैश अकाउंट, एक नरेशन लिख लो और उसके नीचे एक ग्रैंड टोटल, जो ऑब्वियसली इसका टोटल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी आपने लिख लिया. 1,27,650. नाउ फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यार जर्नल तो बन गए. जर्नल के बाद नेसेसरी लेजर्स. कितने लेजर्स है? देख भाई, अगर आप काउंट करने जाओ ना, कैश 1, बैंक ऑफ इंडिया 2, फर्नीचर 3, कैपिटल 4. लाइक दिस यू हैव टू काउंट एंड एवरी न्यू वर्ड, हर एक नया वर्ड बराबर शब्द क्या रहेगा? एक नया लेजर. अच्छा, हमेशा ऐसा करना है? नहीं, हमेशा नहीं. जब कहते हैं नेसेसरी लेजर्स, जब वो कहे कैश बनाओ, बैंक बनाओ, रोहित बनाओ, तो उतना ही बनाओ और मामला को रफा दफा करो. ओके, पहला क्या बनाएंगे? कैश बनाएंगे जी. पहले तो कैश आया है. अच्छा, क्या करना है हमको? कैश के लेजर में देखो, ये जो मेरे ऊपर है ना, ये इसको लेजर कहते हैं बराबर. और इसके अंदर यहाँ पे आता है टू डेबिट, या तो बगल में आता है बाय क्रेडिट, बिकॉज दैट इज द वे द प्रेजेंटेशन हैपेंस. इसी तरीके से ये लेजर को हमको कपड़े पहनाने हैं. अभी आपका ध्यान सिर्फ कैश पे होगा. सर मैं बैंक के बारे में बात कर सकता हूँ, डिस्काउंट के बारे में, रोहित के बारे में, सुनील के बारे में नहीं. आपको सिर्फ कैश पे ध्यान देना है. बट सर इसके अंदर तो कैश है ही नहीं, तो मत ध्यान दो. जब आता है कैश तो ध्यान देना, क्या वो डेबिट है, क्या वो क्रेडिट है. एग्जाम्पल, फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट कर लो ना. उसके लाइन में कितना है? 50,000. सो व्हेन यू ऑब्जर्व राइट अबाउट मी, हाउ डू वी डू दैट? 1 मार्च टू कैपिटल, ऑपोजिट के खाते का नाम आएगा 50,000. इसको कहते हैं पोस्टिंग. व्हेन दे से प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, इसको कहते हैं पोस्टिंग. आपने जर्नल से उठाया, जानकारी चोरी नहीं की, और आपने लेजर में लिख दिया. ओके, हाँ. इसके बाद में आपको कैश कहाँ पे दिखता है? 3rd नो, 7th नो, 10th को दिखता है बट क्रेडिट है. क्रेडिट है, हाँ, तो क्रेडिट साइड पे लिखो ना, बाय बैंक ऑफ इंडिया 5,000. दो ही ऑप्शन है आपके पास. ये कोई केबीसी नहीं है, एबीसीडी नहीं नहीं नहीं, दो ही ऑप्शन है. दो ऑप्शन, या तो डेबिट या तो क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट कहाँ पे आपको कैश दिखता है? 12th को नहीं, 15th को नहीं, 17 को. क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में मैं लिखूंगा, आप लिखोगे बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस. What you are doing at this very moment is called as posting. डाकिया का काम, पोस्टमैन का काम कर रहे हो. ओके, फिर 20th को डेबिट है तो हम डेबिट में लिखेंगे. 20th को डेबिट है तो डेबिट में टू कमीशन. द डेट इज फिक्स, द अमाउंट इज फिक्स्ड. इतना क्या, बिल्कुल घबराहट की बात नहीं है. फिर 25th को फिर से डेबिट है. मैं कैश को देख रहा हूँ, मेरा ध्यान और कहाँ पर भी नहीं है अभी के लिए. ओके, वो कभी नहीं, हमेशा ना घोड़ों को, दौड़ने वाले घोड़ों को नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बैरियर लगाया जाता है ताकि वो घोड़ा लेफ्ट राइट देखकर बहक ना जाए. उसका ध्यान सीधे लक्ष्य की ओर हो, मतलब एंडिंग पॉइंट पहुँचने की ओर. ओके, इसके बाद में आपको 28th को कैश दिखेगा और कैश के लाइन में, वो ध्यान देना, ये जो लाइन है ना 11,500 तो उतना ही आएगा कैश के लाइन में जितना लिखा है. ओके, ऑपोजिट में वर्मा लिखा है तो आप पोस्टिंग के टाइम पे वर्मा डेफिनेटली लिख सकते हो. बाय वर्मा 11,500. डोंट राइट 12,000, डोंट राइट 500. कैश के लाइन में कितना है? लास्ट में एडवर्टाइजमेंट है, कैश क्रेडिट में है तो वापस से क्रेडिट में आएगा.
दिस इज द पोस्टिंग। एक ही लेजर बनाया कैश का, अब तो और बहुत लंबी कहानी बाकी है। अब आपको कास्टिंग करना है, जिसके लिए पेंसिल उठाना है और डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आ गया जी मेरे ऊपर 51,200, 17,200 और डिफरेंस माइनस करके रखना। डिफरेंस डेबिट भारी वाला साइड है, ग्रैंड टोटल में आप दोनों तरफ पे लिख लीजिए। क्रेडिट में प्लीज नोट डेबिट इज 51,200, सत्य वचन, झूठ नहीं है, क्रेडिट झूठ है अगर आप 51,200 लिख दो। देयर इज अ गैप, वो गैप कितने का है क्रेडिट में 34,000, इसको कहते हैं बैलेंस। ये लास्ट डे पे होता है, मार्च में होते हैं 31 डेज, इसको हम कहते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस को याद रखना। ओके कोई आपसे पूछे ये कैश अकाउंट में क्या भारी था, डेबिट भारी था। कैश अकाउंट में क्या भारी था, डेबिट भारी था। क्योंकि कुछ बच्चे कहते कुछ नहीं कितने, सर बट आपने तो क्रेडिट में लिखा, वो डिफरेंस है। ओके भारी वाला साइड डेबिट है। और क्वाइट सिंपल, राजनीति पॉलिटिक्स में भी जो भारी पार्टी होती है वही तो पूरे देश को चलाती है या पूरे स्टेट को चलाती है, भारी। ओके तो कैश का डेबिट भारी है, जो आपको अगले मंथ के बैलेंस में दिखता है, क्योंकि आप क्लोजिंग को ओपनिंग बनाते हो ना। सो कोई भी आपको पूछे, स्टूडेंट्स, ओके मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कैश का बैलेंस क्या है, आपको बोलना है डेबिट, क्लोजिंग इज डिफरेंस। तो ये जो डेबिट में आया ना 34,000, दैट इज द बैलेंस, बराबर। नाउ I'll take this balance and I'll teach you something. What is that something? You see, लास्ट का क्वेश्चन कहता है ट्रायल बैलेंस। यार ये ट्रायल बैलेंस क्या है, सिंपल देख, ऊपर ट्रायल बैलेंस है, दो साइड है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में डेबिट बैलेंसेस लिखा है अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ओके ये बनता है जो डेट मेंशन किया है उस पर, तो लिखा ऊपर एज ऑन 31 मार्च 2019। इसमें क्या आता है, बैलेंस। अभी अपने कैश का बैलेंस लिखा, इसमें क्या आता है, बैलेंस। अच्छा किधर था कैश का बैलेंस, देखो जो पूरा आंसर था ना, जर्नल किया, बहुत मेहनत किया, पसीना छूट गया, लेजर किया एक कैश, तो वो पूरा जो कहते हैं ना सारांश, उसका पूरा जो आंसर है कैश का डेबिट, रिपीट डेबिट भारी था ना, डेबिट आपको डेबिट बैलेंस में लिखना है कैश अकाउंट 34,000। सो इट इज द आंसर। ये रिपोर्ट कार्ड है पूरे प्रॉब्लम का। नॉर्मली ये एक रिपोर्ट कार्ड होता है पूरे बिजनेस का, बट ये प्रॉब्लम में ये एक रिपोर्ट कार्ड है, बराबर। ये रिपोर्ट कार्ड सही है या गलत वो तो अभी नहीं ढूंढ सकते, वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। सो कैश का रिपोर्ट आ गया। नाउ अगला बैंक ऑफ इंडिया, जल्दी से पोस्टिंग करते हैं। मैं थोड़ा नहीं यहाँ वहाँ पे चला जाता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। सो पहला आप देखोगे 1 मार्च डेबिट है बैंक ऑफ इंडिया 7,000, तो 2 कैपिटल डेबिट साइड 7,000। 3 मार्च 7 मार्च नहीं है, टेंशन मत लो। 10 मार्च को डेबिट है, डेबिट करो, 2 कैश 5,000। सो आई रिपीट, मैं अगर सिंपल है तो ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड नहीं करूँगा। 12 मार्च 15 मार्च को है, 12 को नहीं है, क्रेडिट साइड 15 मार्च को क्रेडिट साइड, सो आई एम राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय वर्मा 8,000। नेक्स्ट 17 मार्च 20th मार्च नहीं है, 25 मार्च है, क्रेडिट साइड पे है, इट इज द बैंक ऑफ इंडिया या बैंक, and on the credit side buy cash 1,000। and again do you have any more entries जहाँ पे बैंक दिखता है, नहीं मेरे को नहीं दिखता। ओके मतलब 28 को भी दिखता नहीं है, 30th को भी दिखता नहीं है। तो पोस्टिंग बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट की पोस्टिंग हो गई। अब हे भाई अभी ना टोटल कर लो, कर लिया जी, इधर 12 उधर 9, भारी कौन सा है, डेबिट भारी है, तो ग्रैंड टोटल में वो लिख लो। ये सिंपल है, आप ओरल भी सोच सकते हो। डेबिट में यू विल सी 12,000, क्रेडिट तो 9,000 है, तो उधर एक गैप है, डिफरेंस कहते हैं उसको, उधर एक गैप है, कितने का, 3,000 का, ये बैलेंस होता है।
इसको पहले कहते हैं कैरीड डाउन, अगले मंथ में ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस अगले मंथ का भारी वाला वो आपको ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है। तो 3000 पूरा रामायण खत्म होने के बाद में, आई रिपीट, पूरा रामायण खत्म होने के बाद में आप इस बैलेंस को जो डेबिट में है बैंक का पिकअप करो और ट्रायल बैलेंस में लेके जाओ। सो ट्रायल बैलेंस में पूरा आंसर आ जाता है, पूरी मेहनत का एक सारांश। नेक्स्ट में थोड़ी गाड़ी को जल्दी करता हूँ। फर्नीचर। सो फर्नीचर कहाँ पे है यार? यहाँ पे तो फर्नीचर है 1 तारीख को 10,000। तो इन द पोस्टिंग लेट मी राइट दैट टू कैपिटल 10,000। उसके बाद में या जो मेरे बगल में है ना 12th मार्च टू वर्मा 20,000। एंड देन आप पूरा प्रॉब्लम अगर देखोगे, नॉट अगर देखोगे, देखना आपको फर्नीचर नजर नहीं आएगा। तो आप टोटल कर लो। डेबिट में इट इज एक्चुअली 30,000, क्रेडिट में 0। 4 बार लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आपका ध्यान बताने के लिए। डेबिट भारी है तो ग्रैंड टोटल में तो वही आएगा। डिफरेंस क्रेडिट में आएगा पूरा 30,000, क्रेडिट में आएगा पूरा 30,000। ये बैलेंस है अगले मंथ में, ये अगले महीने का बैलेंस डेबिट आप यहां से पिकअप करो, ट्रायल बैलेंस में लेके जाओ, लिख लो, एज सिंपल एज दैट। सो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग। सर ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है? कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है रे? आपसे वो बैलेंस को, अपने खुद के आंसर को यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, तो मतलब आपका खुद का आंसर पहली बात तो सही होना चाहिए। कैपिटल, अभी कैपिटल में क्या क्या आएगा? ओके, ये पहली बार अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे आया है। हाँ, काफ़ी चीज़ें होती है मुझको टेक्निकली यहाँ पे मेरे कीबोर्ड्स पे, एक नहीं है, ओके, 2 कीबोर्ड्स पे और 2 मॉनिटर्स पे ध्यान रखने के लिए। ओके, कैपिटल में क्या आएगा जी? कैपिटल में आप 1 तारीख को देखो और किधर देखो भी मत। कैपिटल इज क्रेडिट 67,000, बट ऑन द डेबिट साइड, ऑपोजिट साइड आर 3 आइटम्स। तीनों को लिखो, कैश को लिखो, बैंक ऑफ इंडिया को लिखो और फर्नीचर को लिखो। तीनों को लिखो और तीनों के अमाउंट को भी आप लिखो। ओके, हियर बाय कैश 50,000, by Bank of India 7,000 and by furniture. Okay, I hope I'm not disturbing with the screen. Okay, मेरा में नीचे है। Now there is no more capital, नहीं है। Okay, मतलब promise. Debit is 0, credit is 67,000। तो credit भारी है, keep that in mind, credit भारी है। Debit में difference आया, we call it to balance carried down अगले month में credit side पे by balance brought down। अगले month का balance, not same month, अगले month का balance जो credit है आप उठाओ और फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड 67,000। सो आई रिपीट, दिस इज अ समरी, ये जो मेरे बगल में है। ओके, पिकअप करो और बैलेंस को यहां पे लिखो। ओके, चेंजिंग सीन, चेंजिंग बैकड्रॉप। नाउ वी हैव परचेसेस और फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी थोड़ा जल्दी। थर्ड को परचेस डेबिट, थर्ड को परचेस डेबिट टू रोहित 9,000। आफ्टर दैट नीचे नहीं दिखा मुझे, यहाँ पे भी मुझे नहीं दिखा और यहाँ पे भी मुझे नहीं दिखा। सो दैट मीन्स दिस इज इट, डेबिट 9,000, क्रेडिट 0, डेबिट इज हैवी, वो लिखा मैंने। डिफरेंस 9,000 है, वो अगले मंथ में डेबिट साइड पे पिकअप करो, अगले मंथ में डेबिट साइड पे पिकअप करो, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिख लो 9,000। ओके, रोहित, पहले तो ढूंढते हैं भैया रोहित किधर गए। इफ यू ऑब्जर्व इट इज ऑन द थर्ड क्रेडिट साइड 9,000। क्रेडिट में आपको दिखेगा बाय परचेसेस 9,000। ओके, ठीक मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे। ओके, फिर रोहित, यहाँ पे तो नहीं दिखता है मुझे, और एक रोहित यहाँ पे भी मुझे नहीं दिखता। बेसिकली रोहित समाप्त हुआ, मतलब रोहित का खाता समाप्त हुआ। तो क्रेडिट 9,000 है, डेबिट 0 है, क्रेडिट भारी है, क्रेडिट भारी है। डेबिट में टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट का पिकअप करो, क्रेडिट का पिकअप करो और ट्रायल बैलेंस, द वर्ड ट्रायल, ट्रायल का मतलब ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। रोहित के बाद कौन?
अभी सारे जर्नल्स एक पेज पे रखे गए हैं ताकि मुझे भी एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मुझको मल्टीपल क्या कहते हैं ना स्क्रीन्स में आगे पीछे करना पड़ता है, तो अभी थोड़ा ये सिंपल हो गया। अच्छा, अब ध्यान सुनील पे है जी। सुनील कहाँ पर है? 1 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख। 7 तारीख को सुनील अकाउंट डेबिट है, सिर्फ सुनील पे ध्यान देना। इट सेज 2 सेल्स 4750 और उसके बाद नीचे सुनील गायब, गायब मतलब है नहीं, तो इसको टोटल कर लो। क्रेडिट 0 है तो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा। बाय बैलेंस कैरीड डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस डेबिट बैलेंस ओपनिंग पिकअप करो और ट्रायल बैलेंस में लिख लो 4750। नेक्स्ट is sales, and if you notice above you will see sales on 7th credit side, opposite का by Sunil, and that is it, sales समाप्त। ये अगर आप टोटल करो तो आपको डेबिट में डिफरेंस आएगा 4750, क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस। तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, मैं स्क्रीन पे ज़्यादा नहीं देख रहा आपकी तरफ क्योंकि मुझे मेरे मॉनिटर पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है, ओके, ताकि जो भी ट्रांजिशन से चेंज वो बराबर से हो सके। वर्मा, वरना गलती हो जाएगी। वर्मा, वर्मा आप देखोगे तो 12 तारीख को है, वर्मा 15 तारीख को भी है। 12 तारीख को क्रेडिट बाय फर्नीचर और 15th को डेबिट। दिस इज इट। आफ्टर दिस थोड़ा नीचे आना, आपको वर्मा 28th को दिखेगा, ये ठीक मेरे पीछे डेबिट साइड। तो वर्मा डेबिट में आपको 2 चीज़ें लिखनी है, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव। जब भी ऑपोजिट में देयर आर 2 और 3 और 4 आइटम्स, यू राइट ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम पोस्टिंग में। डेबिट आप देखोगे, आप बोलोगे 20,000 है, क्रेडिट अरे दोनों साइड 20,000 है। अकाउंट बंद, जब कोई भी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट सेम होता है, सेम, तो अकाउंट खाता बंद। लेना देना कुछ नहीं है, वर्मा के साथ हमारा लेना देना, बैलेंस लेना देना नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि बैलेंस आया ही नहीं। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आता है बचा हुआ, बट वर्मा के साथ कुछ भी बचा हुआ नहीं है। प्रिंटिंग एक्सपेंस बड़ा सिंपल है जी, आप 17 मार्च को देखोगे तो डेबिट खत्म हो गया। इसको अगर आप टैली करोगे तो आपको पहले तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा और वो फर्स्ट को डेबिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस को पिकअप करना और ट्रायल बैलेंस में लिख लेना। नेक्स्ट कमीशन, ये आपको क्रेडिट में दिखता है व्हेन 20th मार्च बाय कैश, एंड अगेन ये भी खत्म हो गया। डेबिट में ये डिफरेंस आएगा और नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को, क्रेडिट बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिखो। टिल नाउ आप सोचते रहोगे ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्यों बना रहे, थोड़ा रुक जाओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी क्रेडिट में है और ये भी सिंगुलर है, इसमें और कोई डिस्काउंट रिसीव्ड आया नहीं है। व्हेन यू टोटल इट आपको डिफरेंस डेबिट में और बैलेंस क्रेडिट में, इसको भी पिकअप करना, ट्रायल बैलेंस में लिख लेना। मेरे जैसे जल्दी जल्दी आप नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा टाइम लोगे क्योंकि ऑब्वियसली ना आपको तो ड्रॉ करना है, ओके। हाँ, सो वो कर लेना, बट द आंसर हैज़ टू बी द सेम। देन द लास्ट एडवर्टाइजमेंट, ये डेबिट है तो आपको क्रेडिट में बैलेंस आएगा और डेबिट में, सॉरी, क्रेडिट में डिफरेंस, डेबिट में बैलेंस, और उसको पिकअप करके आप डेबिट में लिख लेना। क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट जर्नल डन, लेजर्स डन, उसके बाद में उसका टोटलिंग, बैलेंसिंग डन। तीसरा ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट डन मेरे ऊपर। ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, यू सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ अकाउंट्स एक चीज़ पक्की थी, क्या, ये डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में वो करता हूँ मैं, उसके बाद में वही डेबिट क्रेडिट को जो सेम है मैं लेजर में लिखता हूँ, मैं बदली नहीं करता। तो ये क्या है मेरे ऊपर, वेल आपके ऊपर एक ट्रायल बैलेंस है जो पूरे डेबिट क्रेडिट का एक समरी है, सारा डेबिट एक तरफ, सारा क्रेडिट एक तरफ। देयरफॉर जो उसका
टोटल है, ये आप देख रहे हो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बड़े मजे में जा रहा है। क्यों? बिकॉज ये जानता है कि हम सही है। ये दोनों जानते हैं कि डेबिट का टोटल 81,450, क्रेडिट का टोटल 81,450। दैट मीन्स टू से, देखो कुछ लोगों को काम लंबा लॉन्ग कट पसंद है, कुछ लोगों को शॉर्टकट में चाहिए। तो अगर किसी को जानना है, मैं बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस का एक यूज़ क्या है। ओके, किसी को जानना है ये अकाउंटेंट सही कर रहा है कि अकाउंट्स, तो वो क्या बोलेगा, ट्रायल बैलेंस बता। जर्नल मत बता, अरे कितना लंबा रहता है। लेजर मत बता, अरे कितना लंबा रहता है। ट्रायल बैलेंस बता ना, सिंपल, एक पेज पे आ गया। डेबिट क्रेडिट इफ इट इज इक्वल 99%, नॉट 100, 99% अकाउंट्स की गाड़ी अच्छी जा रही है। आई एम नॉट सेइंग ट्रायल बैलेंस परफेक्ट होता है, नहीं जी। ओके, पवित्र शास्त्र में दिया गया है कि भाई ऊपर वाला जो है ना, ओके, ऊपर के फ्लोर वाला नहीं, ओके, ऊपर वाला परफेक्ट है, सिद्ध है। हम में खामियां हैं, इसमें भी खामी है। ओके, इट कैन बी परफेक्ट बट एटलीस्ट इट इज नियर टू परफेक्ट। इट टेल्स यू, हाँ रे, अगर सेम आया तो चल भाई 99% तो अपना अकाउंटेंट चोर नहीं है, बराबर। क्योंकि आजकल कितने जगह पर कितने लोग चोर निकलते हैं। ओके, यहाँ पर ये सही है। टुडे दिस क्वेश्चन कम्स टू एन एंड माय डियर। आपको क्या करना है? कुछ नहीं जी, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो शेयर करना, कोई दिक्कत परेशानी हो या अगर आपको हमको थैंक यू बोलना हो, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लो। आके अगले लेक्चर के लिए रुकना, अगले लेक्चर में दोबारा कुछ नया लेकर मैं आऊँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।